So hi Nikunj, I welcome you today for this session, and today we would be focusing on Scopus. Yeah, let us go ahead and finish it off with Google and see what we are trying to do very carefully. Since this is hands-on experience for you also Nikunj, I will ask you to follow up like me scholarly articles on let's say you want mergers and acquisitions. Okay, Okay, ma'am. ये वाला हमने कल भी किया था. If you remember, when I went over to the Web of Sciences, the same thing you would be doing it for this one also side by side. Is that okay? So here I go and I click on it. Can you मैम see? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. Okay, I'll just share it with you. I'm so sorry. मेरे को वापस जाना पड़ेगा इसका मतलब. Here we go. And here it is. Um, okay, let me take away. And can you see the Google page? Yes. Yes, ma'am. Okay, so now I'm writing here. Have a look. Scholarly articles on mergers and acquisitions. Okay, और इसको immediately enter करो. Now see what Google does. This is the basics of Google search actually. I'm not entering into the advanced form right now. It is simple and basic one. If you do this, can you see how many results have come into the picture? How much is it? 17 lakhs and 90,000. सबसे पहले जाओ. थाउजेंड. This is mine. Open the notepad or this thing. And आप अगर Excel पे कर रहे हो, so let me just show it to you. यहाँ पे वापस serial number. Then you will write database. This is your database. Okay. And number of, नंबर. you can simply write आर्टिकल. number. Okay. And time. Time also matters a lot, and I will just show you how. Let's say we are going into the Google. Google gave you 17 lakhs 90,000. थाउजेंड. अब आप लगेगा मैम टाइम कहाँ से निकालेंगे हम लोग. Now you will see here. Can you? It sometimes they tell you in how much time it has been taken up also. अभी मेरे में ये आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर दिखा देता है कि yes I have taken. Now I'm not checking out these ones. I am clicking on this. Okay. अब देखो क्या अब आ गया टाइम 0.09 seconds में it gave you. So this also you will go ahead and you will write 0.09 what seconds. Are you with me till here? यस मैम. And this is your first one that you have done. So ये तो हो गया Google का. Now what you will do, you will see so many things are there. कैसे कैसे? Let's have a look. अच्छा, यहाँ पे उसने अब कितना दे दिया? पहले वाले results were how many? 17 lakhs में था. 17 When I lakhs. said only the scholarly articles, so here you will write Google. You understood the differences now. Articles, it came out in, okay, I'll just write it down since I copied it. ये आपको दिख रहा है? It has given to यस you. मैम. Now, am I right on this? Let's have a look. Yes. And in how many seconds? 0.09. अब वो same है. पॉइंट. So you can just go here. 0.09 seconds. वो तो हो गया टोटल. हो गया ये वाला पार्ट. इसको आप बोल्ड कर दो तो आपका हो जाएगा. मतलब कलर जो है इसको हो गया आपका. And start saving them. अच्छा, now what you will do, there are so many things are there. Now see what all things you can find it out here. One, you will see PDF. Okay. यस मैम. And if you are very serious about these things, you have to understand and see PDF from where you are getting it. So it is coming from, so you can open Academy. the notepad now and you will say PDF ऊपर दे दो and write it down. Academia.edu is giving you this one.
Then from where did you get this one also? This is from FL. EPFL.ch. ठीक है, ऐसे आप सारा देखो कि मोस्टली कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. एंड दिस इज FTC. JST. Now this is very important क्योंकि गवर्नमेंट का पेपर है ये तो. So you will see FTC.gov and next you are getting Gestor से भी आपको पेपर्स you are getting it free. ये कौन से साल का है, क्या है, that we will have to see. अब if you want go ahead और एक 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 करके पढ़ते जाओ. लेकिन we know that whether we belong to the management or the finance department or any department, first and foremost you have to do it is from 2022. या तो ये कर लो since 2022 से कि भाई लेटेस्ट पेपर्स में से आप चेकआउट कर रहे हो, ये कर सकते हो. नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन जो ये 8,09,000 रिजल्ट्स जो दिए हैं, this is mixing up all the years. Okay, for example it can be 2001, 2006, 2004, कभी 2005. वो अपनी मर्जी से करता जा रहा है. कैसे कर रहा है? Now have a look again. Save, ये सेव कर सकते हो आप अपने में ही, तो वो सेव होता जाएगा. For example, if you are using any reference tools like Mendeley, okay, otherwise End Notebook आप यूज करो, जो भी आपको पसंद है, Mendeley हो गया. So you can keep doing them and it will get saved over there. Number one. Number two, can you see that yes, here they are even Cited by the citations. Okay, cited by. How many it is? This is the highest one, 1,229. Let's see. So वो कैसे आपको papers दे रहा है with the number? नहीं, number पे नहीं है because it is going randomly. लेकिन highest जो दिखाया है उसने कितना दिखा रहा है? 1,229. What else is showing? Related. But what do you mean by related search? It means it is helping you to find out lot of things. 30 years of mergers and acquisitions. अब 30 years कब से उसने किया है? 2006 में किया है. यानी कि 2006 के जो पहले पेपर्स थे, those were the 30 years of merger and acquisitions. अब आप देखोगे कि क्या ऐसे किसी और ने भी किया है क्या? अब नाउ दिस इज 2006, 2022 कितने हो गए ऑलरेडी? 16 years. तो पिछले 16 years का आप चेकआउट करके देख सकते हो फ्रॉम 2022 ऑल्सो कि हुए हैं कि नहीं. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया. और ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है? ब्रिटिश जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में. सो दैट मीन्स इफ यू कैन डू इट फॉर पास्ट 5 years या फॉर द पास्ट 10 years ऑल्सो, that means in this journal it would be able, you have got the scope to publish your paper. Are you able to understand this one also side by side? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. ये वाली चीजें आपके इस तरह से चलते रहते हैं. Are you clear with this one now? Yes Okay. ma'am. मतलब now you see you're doing multiple tasks over there. One, you have to find it out कि okay past में हुआ क्या है, that's what you are trying to find it out. Next you are trying to find it out कि भाई कैसे कैसे हुए हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बोल के. This also you're checking out. Then you're checking out again which year और आपका scope कैसा है, and in that particular journal also side by side. Are you with me till here? Yes ma'am. Okay. Now you can go ahead. अब आप custom करिए range. Custom range का मतलब क्या है? You will do for the last 10 years. 10 years का कितना होगा? 2012 और इधर लगाओगे कितना आप? 2022. ओके. अब आप इसको सर्च करिए अगेन. ओके. अब आप जब सर्च करोगे ना, you will be getting papers from 2012 to 2022. इसका उल्टा भी कर लो नहीं तो और बेहतर है. Let us do from here till यहाँ तक. Okay, and search out. हो गया? So you will be getting it in the same manner. Why I am trying to showcase to you 2012 to 2022 कर लो, नहीं तो do custom search again. पीछे जाओ पहले and then click on this one. तो अब लिखो आप यहाँ पे 12 तक मेरे को चाहिए. And now you will see that you will be getting, वही आ रहा है, same ही दिखा रहा है basically. Okay, so these things are there for you complete.
basically. Are you with me till here? Yes, ma'am. Okay, and now you will find it out that yes, you can, if you have, how many results are coming in? 19,500 19,500. रिजल्ट्स आए हैं आपको. इफ यू वांट टू डू द सर्च फ्रॉम पास्ट 10 years, अगर आपको 10 years का नहीं करना है, गो हेड विद 2022 एंड 2022 के आप देखोगे हाउ मेनी रिजल्ट्स आर दैट. 17,000 आपको 17,000. 5 seconds basically. Okay, got it now? Basically, so here you will see that yes, this is what is happening over here completely. Okay, now you will start off with the further things basically कि कैसे कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे. How you will do it now? Now you want only for 2022. ये latest paper है आपका. Yes, ma'am. Click on this and now you can go ahead and find out basically कि क्या इसमें दे. And now इसका स्कोपस में कैसा है, दिस आई विल शो इट टू यू लेटर. पहले मैं खत्म कर रही हूँ इसका ये वाला पार्टी. एंड नाउ सी इफ आई पिक अप 2022 का, इफ आई डू दैट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? साइटेशन है, रिलेटेड आर्टिकल्स दिखा रहे हैं आपको यहाँ से. सो दिस इज द लेटेस्ट वन. सो लेट मी गो हेड and see what is the related articles that they are and this is published in Science Direct and you know it's again a Scopus one. इसको क्लिक करो. अब रिलेटेड आर्टिकल्स नेक्स्ट वाले पे आपको सारा का सारा दिखा देगा. कितने हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर, द 101. क्वेश्चंस. और ये कब पब्लिश हुआ है? 2022 में. ये भी 2018 में हुआ है. सो दीज आर द न्यू वन. अगेन यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड सी how the things are taking place out there. Are you with me till here? Yes, ma'am. यहाँ तक मालूम पड़ रहा है आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो. MDPI is also a very important journal. We know that. Yes or no? And here you can see author's name, journal name, year, कहाँ पर पब्लिश हुआ है ये भी आपको बता रहा है basically, and all the 10 versions. Now what do you mean by all 10 versions? Let us click on this and see. अब आपको देखो कि इसके अंदर क्या बोल रहा है. Now 9 results आ रहे हैं यहाँ पे. Now you will find out all the 10 versions, मतलब इसके versions इस वाले पेपर के कहाँ कहाँ पे इन्होंने पब्लिश कराया है सेम पेपर को. Okay, you can see out here MDPI same है. Energies ये कहाँ पे पब्लिश कराया है? इन WIRUE. अब आपको मालूम पड़ा क्यों मैं कह रही थी कि SLR करना है. यानी कि जब आप इसको मल्टीपल पेपर हो जाते हैं, मल्टीपल पेपर मतलब सेम पेपर इन वेरियस जर्नल्स. नाउ यू अंडरस्टूड कितने 9 रिजल्ट्स निकले हैं आपको यहाँ पे. एंड जब मैंने देखा, डू यू थिंक दैट आई नीड टू इंक्लूड इट इनटू माय रिकॉर्ड ऑल द 9 वेराइटीज? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए. जब मैं जर्नल्स के बारे में देखूंगी देन आई कैन लुक इट. हाउएवर it is the same paper that they have published in so many journals. इससे आपको क्या लेसन मिलता है? That yes, if you have published in one of a good journal, you can publish them in other journals also. अब आप देखो, I'm clicking on this one. कि ये कहाँ पे किया है, ये वाला पार्ट है. ओके, लेट अस सी. मैंने इस पे क्लिक किया. ये आपको मालूम पड़ रहा है कहाँ पे किया है उसने, एंड इट इज इन व्हाट फॉर्म. नाउ आई विल बी शेयरिंग सर्टेन थिंग्स वेरी क्विकली विथ यू. ये हो गए जर्नल सीरीज, इश्यू या पूरा पेपर दिया है उसने? नहीं दिया. He hasn't given you the whole paper. It is only the abstract, author's name. Abstract. What is this? Citations. अभी ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ. यही चीज मेरे को करना है आपसे कि कहाँ कहाँ पे ये होता जा रहा है करके. ठीक है? And that's what I wanted to start off with this. And now I'm coming back to a small presentation. ये मैं पहले वाला PPT, ये वाला PPT दोनों आपके साथ शेयर करूंगी मैं. Okay? Now this one is basically on what types of bibliometrics. Okay? Now let us see कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे. Types of bibliometrics. अभी आपने देखा here that yes, bibliometrics are generated using statistical analysis. और उसकी आउटपुट कहाँ कहाँ से आती है? पर्टिकुलर ऑथर, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन,
journal, number of citations. These are the ones that you will be focusing upon whenever you do what you call it as bibliometrics for yourself. Okay, Dikunj, यहाँ तक मालूम पड़ा? Now they're Yes, telling ma'am. you, depending upon these things, there are various types of metrics. Mota mota, these are the four ones. What are they? Publication metrics, author metrics, journal metrics, and alt metrics. Okay, there are other metrics, but these are the four major ones that we are going to focus upon. What is publication metrics? To find out how often a publication or a group of publication has been cited by others. Okay, now you see in India, Nikunj, you can see that everybody in whatever workshop you're going, they are showing to you Vox viewer. Okay, what is the output? Have you ever seen the output? कभी आपने देखा है Vox viewer Yes, का? मैम. Yes, मैम. बहुत ईयर का देखा है. कैसे आता है? मैम वो एक्सेल फाइल से हम लोग या सीवीसी फाइल को क्या कहते हैं उसमें रन करते हैं. जो भी आपको पब्लिकेशन चाहिए, को ऑथर्स चाहिए या कपलिंग है, ऐसे हाँ, करके जो वो भी है, लेकिन बताते हैं. आउटपुट कैसे हाँ, आता है आपको? आउटपुट मैम कलरफुल आता है. वो लिंक बताता है कि ये कहाँ कहाँ है, और जो ज्यादा होता है वो मैम क्या कहते हैं बड़े वर्ड्स में आएगा या फिर Yes. So वो you're हाईलाइटेड aware of रहेगा. it. Have you ever seen any journal जो colored ग्राफ्स या नेटवर्क्स को पब्लिश करता है? मैम ध्यान नहीं दिया मैंने कभी. आपने जर्नल्स तो पढ़े हैं ना, कुछ कुछ आर्टिकल्स तो? यस मैम, आर्टिकल्स देखे हैं. कहीं पर भी कलर्ड देखा है आपने? कलर्ड मैम देखा है मैम, ये वॉच वेयर वाले देखे हैं. क्या बाकी देखे? जन मैम जो इमेज रहती है वो तो कलरफुल रहते हैं, लेकिन बाकी सब तो वो ब्लैक में ही रहते हैं किसमें? नॉर्मल. मैं जर्नल्स में पूछ रही हूँ, जो रिसर्च पेपर्स आपने जितने भी पढ़े हैं, यू विल सी Yes. दैट कहीं पर भी कलर्ड नहीं लेते वो लोग. कलर नहीं लेते हैं, वो ओके, सिंपली रहते हैं. नाउ व्हाट शुड आई लर्न देन? मैं क्यों लर्न करूँ उसको? ताकि वो मैं जब उसको पब्लिश कराऊं मैं वापस से ब्लैक एंड व्हाइट आए इसलिए, या मेरे पास डू आई हैव एनी अदर स्कोप ऑफ गेटिंग द सेम रिजल्ट्स? यू सी, इफ यू कॉपी पेस्ट दोज रिजल्ट्स जो कलरफुल वाले हैं एंड यू सेंड इट टू द स्कोपर्स पब्लिशर्स और लेट्स से WOS के जर्नल्स के पब्लिशर एडिटर्स को भेजोगे, वो क्या करेगा? सबसे पहले आपको पहले कहेगा यू वेट, आई एम सेंडिंग योर पेपर टू द पीयर रिव्यूअर्स. यस और नो? उसके बाद क्या होगा? आफ्टर 1 month or 2 months he will come back and you know what he will say? मैं बताती हूँ, because I'm associated with these journals. वो आपको 2 महीने के बाद पेपर भेजेंगे और बोलेंगे take out all the colored pictures, insert the black and white and get back to us. Okay ma'am. You understood now? Okay, therefore अगर आप Vox viewer learn करते रहोगे, okay, you're wasting your time. आर्ट स्टूडियोज जो बिब्लियोशाइनी है, आप डाटा एनालिसिस ग्रुप में हो, आप देख रहे हो कि हाउ पीपल आर आस्किंग यू कंटिन्यूअसली यस और नो, यहाँ पे अटक रहे हैं, हमको ये नहीं आ रहा है. यानी कि जो आपको सिखा रहा है वो ये नहीं बता रहा आपको. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, CS आपने एक्सेल की फाइल तो डाउनलोड कर लिया WOS से, ठीक है. अगर उसको एज इट इज बिब्लियोशाइनी के सॉफ्टवेयर में, आर के सॉफ्टवेयर जो है आर्ट स्टूडियो में, उसमें करोगे, वो वापस फेंक देगा. वो कहेगा सॉरी, दिस इज नॉट एन एलिजिबल और अप्रोप्रिएट डाटा दैट यू आर अपलोडेड. तो आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है. यानी कि आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको बताए कि जितने भी ब्लैंक स्पेसेस है, ओके, जो कल हमने देखा था, मैंने बोला था ना, ये सारा डिलीट कर दो, जहां जहां नंबर्स हैं उसको रखो, और फिर पूरा अगर आप कंप्लीट करते हो, then you can upload it on RStudio and then you can run. You will be able to get it. Same thing happens in these things also, जो ये बता रहे हैं. Now coming back to this one, you have publication metrics, जहां पे you know, you are focusing on how many times that paper has been published. Okay, now here we have seen that there are 2 ways. Google Scholar सबसे आसान है, और वहां पर मैंने देखा
एक कि यस कौन कौन से इम्पोर्टेंट WOS और स्कोपस के जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, नंबर 1. नंबर 2, व्हेन आई गो हेड एंड फाइंड आउट, शो मी ऑल द वर्जन्स, या कहाँ कहाँ पे उन्होंने पब्लिश कराए, दिखाओ सेम पेपर but in different journals, right? That you will include in publication metrics. Okay. You understood ना? Vox Yes, viewer, ma'am. बिब्लियोशाइनी सारा का सारा आउटपुट नहीं देगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि कौन से जर्नल में हुआ है, and these are the output, go ahead and take care of it. However, you should know, and that is the reason why I thought today I would like to go ahead and explain to you the basics also, कि भाई क्या क्या हो रहा है. Second is the author metrics. Author metrics का मतलब क्या होता है? Impact of an author, group of authors based on their citation rate. अब आपने देखा ये सेकंड केस, ऑल वर्जन, उन्होंने क्या किया, एक ही पेपर लिखा लेकिन अकेडमिया में भी पब्लिश कर दिया, रिसर्च गेट में भी पब्लिश कर दिया, इन फर्स्ट जर्नल आल्सो दे हैव पब्लिश्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन पब्लिकेशन. कैसे पब्लिकेशन? ओनली एब्स्ट्रैक्ट एंड द अदर डिटेल्स. यू अंडरस्टूड? तो जैसे मान के चलो अभी आपने अभी एक सेकेंड, लेट्स गो बैक हियर. अब आपने कहाँ गए, ये वाला था, ओके. अब पहले मैंने ये वाला पेपर को सिलेक्ट कर लिया, ओके, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, हैव अ लुक एट इट, कहाँ पे ये हो रहा है? MDPI का एनर्जीज का जर्नल है, यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा पेपर दे दिया. और कहाँ डाउनलोड भी कर लो, जो करना है कर लो, साइटेशन भी एक्सपोर्ट कर लो, कर लिया जी हमने. तो ये तो हो गया एक पेपर ना, जहाँ पे फुल पेपर था. अब सेकेंड पेपर में देखो उन्होंने क्या किया. हैव दे गिवन टू यू एनीवेयर पूरा पेपर या एब्स्ट्रैक्ट दिखाया है? Excuse ma'am, there is some changes in audio. Yes. हाँ, क्या कह रहे हो आप? Ma'am, there is Hello? some issues in audio. अब ठीक है, अब आवाज आ रही है आपको? Are you able to hear me? हेलो निकुंज, आवाज आ रही है मेरी? हेलो निकुंज, कैन यू हियर मी? Ma'am, there is some issues in audio. Are you ma'am. able to hear me now, or you are having? Yes, ma'am. आवाज आ रही है Now अब it is मेरी? clear. Yes, ma'am. It is clear for you? Okay. I was without the headset actually, so that was the reason. Okay. Now what will happen? This is the second publication, uska. Lekin here he has just given you what? Only the abstract, and then he said, if you want to read this kind of a paper, kindly click on this, and you ye click karo kahan pahunchege ho. Let us see. You are reached to the MDPI. अब आपको मालूम पड़ा इसकी कहानी क्या है. यहाँ पे एक ऑथर का पब्लिकेशन हो गया, सेकेंड वर्जन, मतलब ही हैज गॉट सेकेंड साइटेशन आ गया इसका, नंबर 1. नंबर 2, इवन द पीपल हु हैव पब्लिश्ड हिज पेपर, दैट इज व्हाट, MDPI, उनका भी आ गया यहाँ पे सेकेंड वर्जन. आर यू विथ मी? यू अंडरस्टूड नाउ द टेक्निक? अब मैं वापस आ जाती हूँ. हाँ मैम, बाकी अगर उसने MDPI में पब्लिश किया मेन, तो बाकी सब में एब्स्ट्रैक्ट दे दिया. हाँ जी, लेट अस सी, दिस इज आल्सो देयर. ठीक है, ORG है लेकिन इट इज अगेन एनर्जीज. कैन यू सी? अब मैं जब, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ इट, मेरे कहने से पहले, वर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? नो मैम. नो. अब आपको मालूम पड़ा. SLR में हम क्या करते हैं, यू गो हेड, आई एम नाउ गोइंग बैक. अब मेरे पास ये आ गया ऑल 6 वर्जन. अब मैं इसको क्लिक करूंगी और मैं देखूंगी कहाँ कहाँ पे उसने किया है और कितने बार किया है. 6 बार किया है, सारे के सारे हटा दो. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम हियर इट शोज 17,000, राइट? 17,000 में ये 6 वर्जन्स भी हैं. यस और नो? आर यू एबल टू हियर मी? यस मैम. Okay, yes ma'am, ये yes ma'am. 6 हम लोग हटा देंगे. You understood now? In the same manner, this paper is for 10 versions.
अगर मैं इस पेपर को ले वो रही हूँ, 10 आई विल सबट्रैक्ट दोस 10 वर्जन्स को मैं निकाल दूंगी कि ये कह के कि these are duplicates for me. Are you with me? यस मैम। मालूम पड़ा आपको ये वाली पार्ट? So these are the ones that you have to take care about it. Is that okay मैम for you now? ये तो एसएलआर में कर लेंगे, लेकिन इसको बिब्लियोमेट्रिक में कैसे करेंगे? बिब्लियोमेट्रिक से माइनस करोगे ना, यू विल नोटिंग इट डाउन दिस पर्टिकुलर पेपर, आप कॉपी करोगे इसको इस तरह से, आप बिब्लियोमेट्रिक्स में अब अपना टेबल बनाओगे आप। दैट इज द रीजन व्हाई एसएलआर एंड बिब्लियोमेट्रिक्स गोज टुगेदर। आप इसको लोगे, यू विल गो टू दिस पार्ट एंड लेट्स से एक और टेबल बना रहे हो, आर्टिकल, ओके। अब इसको मैं एक सेकेंड कर दिया मैंने, ये मेरा आर्टिकल, एंड नाउ हियर गो हेड एंड राइट इट डाउन। पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, यू विल से research paper, okay, words, number of version, कितने वर्जन हो गए इसके? अब मान के चलो इन माय डेटाबेस, ओके, WS आपको ये दे देता है कहाँ पे? साइटेशन में, यू सीन यस्टरडे, राइट? गूगल भी एडवांस में देगा आपको, दैट आई विल शो यू लेटर ऑन, लेकिन यू आर एट द बेसिक्स राइट नाउ। बेसिक्स में अब आप यहाँ पे टेबल बनाओगे अपने लिए। मैम if we have so many papers, thousands of papers, so we have to do manually also. कभी कभी तो करना ही पड़ेगा मैनुअली, बिकॉज दैट इज हाउ योर ऑथेंटिसिटी कम्स फॉर योर दिस थिंग, करेक्ट? फॉर योर पेपर, दैट मीन्स व्हेन यू आर पब्लिशिंग योर पेपर, थोड़ा तो मैनुअली काम करना पड़ेगा ना हमको। तो मैम वो तो एसएलआर के लिए, लेकिन अगर बिब्लियोमेट्रिक में हम बिब्लियोमेट्रिक में भी ऐसे मैनुअली ही करना पड़ेगा? नहीं, सारा का सारा आप नहीं करोगे मैनुअली, कुछ चीजें तो आपको आ गई, जैसे यहाँ पर हो गया। नाउ यू विल बी सी कि हाउ मेनी पेपर्स आर देयर और इसमें मैं कितना कर रहा हूँ। सिमिलरली सॉर्ट बाय डेट हो गया। अब मान के चलो यू आर जस्ट लुकिंग बाय द ईयर, दिस इज एनी टाइम, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेट मी कंप्लीट इट। दिस इज एनी टाइम यू आर गेटिंग, दिस इज सॉर्ट बाय रेलेवेंस में हो गया, एनी टाइप ऑफ ये हो गया, इंक्लूड पेटेंट एंड दिस गोइंग आल्सो साइड बाय साइड। ये सारा गूगल करा रहा है आपको पीछे। Okay, so you will have to go ahead and you will have to note with this particular title how many papers you have got and in how many minutes you have been able to get it. पूरी तरह से। Is that clear till here? वो भी मैं दिखाऊंगी कल आपको। Complete with the basics part first and then you will see what happens in the advanced part of this one. Also, Google बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाएगा and it will give you far more things also better. Are you with me till here? Yes, ma'am. Okay, अगर आपको sort by relevance करना है, okay, now see what will happen. वो क्या कर रहा है सारा का सारा? 22 करके पूरा दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि you want 2022 के latest papers चाहिए आप। अब कितना उसने कम कर दिया? मैम अराउंड से पहले 17,000 आ रहे थे, अब 6,000 आ रहे हैं। So can you see the difference? Almost 11,000 का difference आया आपको। In how many minutes? Seconds में जाके 0.06. Now you understood why you have to maintain all these things? Okay, ma'am. Have you understood now? और यहाँ पर भी मैम ये रिजल्ट तो समझ में आ रहा है कि वो रिजल्ट कैसे कम हो रहे हैं, ये टाइम से क्या हम शो करना चाहेंगे? 0.6 सेकंड्स में लेके आ रहा है ये आपको। ये तो ओके। ओके, WS का अगर कल आपने देखा, was it instantly it was showcasing or it took some time? और सारा का सारा देखो ना आप फिल्टरेशन कैसे हो रही है। वहां पे जब हमने किया all, remember it was only how much it was showing? 4,710 papers. Yes, ma'am. ये भूलो मत, तभी मैंने कल इतना टाइम लगाया 2.5 hours only on WOS. अगर आप वो चीजें भूल गए तब तो गूगल स्कॉलर को दिखाने का कोई मजा ही नहीं है फिर मेरे। नहीं नहीं, Now you understood ना? वहाँ पे 4,710
whatever seconds it was, वहाँ तो टाइम तो दिखाया ही नहीं था उसने तो. टाइम नहीं दिखा रहा था. Okay, so if you are preparing on databases, bibliometrics में databases इसलिए हमने शुरू किया था. आप अगर databases दिखा रहे हो, आप बोलोगे on the top सबसे पहले तो WOS जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आपने दिखा दिया WOS. फिर आप कह रहे हो Google Scholar, पहले तो सिंपली गूगल किया आपने तो, फिर आपने किया what? Google. Are you able to hear me? Hello. Can you hear me? Ma'am, again your voice. Nikunj, now are you able to hear me? Able to hear me? निकुंज, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. हेलो, कैन यू हियर मी? ये बहुत ज्यादा. यस मैम. यस मैम. यस मैम. नाउ आर यू एबल टू हियर मी? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हियर यू विल बी राइटिंग व्हाट नाउ? गूगल स्कॉलरली. अब मालूम पड़ा आपको स्कॉलरली का मतलब क्या है? Okay, and the difference between Google database and Google Scholarly database में क्या फर्क होगा? Okay, and then you have got Scopus, right? And then you are also looking for Microsoft. अभी मैंने दिखाया नहीं है आपको. Microsoft is another, I would say, database that you have got. और यहाँ पे फिर आप लिखिए number of articles or research papers, time. फिर आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट. एंड यहाँ पे चाहिए तो हाँ, नंबर ऑफ पेपर्स, ये भी आप दिखा रहे हो. तो इनिशियली जब आप पब्लिश में जाओगे ना, व्हेन यू आर शोकेसिंग टू देम दीस थिंग्स, देन दे विल से कि अच्छा निकुंज ने मेहनत तो की है इस चीज के लिए, एंड दे विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. आर यू विथ मी टिल हियर? यस मैम. ओके, नाउ लेट अस गो बैक अगेन. नाउ यहाँ तक तो हमने दिखा दिया. ओके, that yes, relevance का भी हम लोग आ गए. ठीक है, relevance में क्या दिखा रहा है ये आपको? सारा का सारा the way all the Scopus also कहाँ publish हो रहे हैं, year also, your now these things also you should maintain that yes, WOS did not give you any information on all 10 versions. Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am, वो नहीं शो करता, नहीं दिखाया. यानी कि WOS के अपने फायदे हैं, गूगल स्कॉलरली के अपने फायदे हैं, एंड इफ यू गो टू माइक्रोसॉफ्ट एज अ थिंग, इट हैज गॉट अ डिफरेंट वन. यहाँ मैं एरिक, एक और डाटाबेस है, वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको. अगर मैं इस पे जाती हूँ, एरिक, दिस इज यूएसए गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये. ओके मैम. ओके, डाटाबेस. नाउ हैव अ लुक एट इट. आपने WOS देखा, अभी आपने गूगल स्कॉलर देखा. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब व्हाट यू वांट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. यस, एंटर. तो दिखा देगा TION. अब ये देखो गवर्नमेंट का है ना, इसीलिए उसने दिखा दिया यहाँ पे एडवांस सर्च टिप्स. ओके, कितना दिखा रहा है ये रिजल्ट्स? मैम ये पेज है 103 पेजेस. नहीं, फिर 103 रिजल्ट्स हैं. रिजल्ट्स यानी कि उसने तो 6000 से भी कम करके दिखा दिया गवर्नमेंट वाले ने. क्यों? क्योंकि ये अलग है. एक दूसरा, कैन यू सी दिस वन? Peer reviewed only और full text available on this. WOS में कहीं पर भी उसने नहीं दिखाया आपको कि भाई peer reviewed journal है ये वाला. Okay, because it's only WOS and it showed only peer author. मैंने शायद आपका बंद नहीं किया था कल. I don't know whether I have just kept it open like that only. Yes. WOS मैम. WOS मुझे लग रहा है मैंने एक्सेस कर लिया था तो शायद उधर से बंद हो गया होगा. नहीं, ठीक है, वो मैंने नहीं किया, अभी बैठ के करूंगी मैं वापस से. I actually wanted to show you the differences today.
between the different databases. अब आपने देखा यहाँ पे peer review. Now you should know all these things also कि if you are going to WOS, कल को इंटरव्यू में कहीं आप जा रहे हो, let's say as a PhD student, और आपने कहा yes I'm writing a paper on bibliometrics, वो पूछेंगे आपसे कि बच्चे बताओ आपने क्या क्या किया. At that time if you give them वो हवा में उड़ने वाली बड़ी बड़ी बातें, मैंने वॉक्स व्यूवर यूज किया, अब मैं अगर बैठी हूँ वहां पे, आई विल आस्क यू व्हाट इज द यूज ऑफ वॉक्स व्यूवर फॉर योर पब्लिकेशन, और आपने कह दिया कि हाँ मैंने डाटा लिया, उसको इंपोर्ट किया और मेरे को ये आ गए, तो मैंने कहा देन यू सेड यस आई यूज दिस ओनली, रिजल्ट्स जो उसमें आए हैं वो मैंने पब्लिकेशन में यूज किया, मेरा पेपर पब्लिश हो गया, मैं तो आपको वही पकड़ लूंगी. यू अंडरस्टूड नाउ? Okay, what is, so you should know for each and every, ये कोई बताता नहीं है आपको, ये अंदर की बातें हैं, हम लोग पे कर देते हैं और वॉक्स व्यूवर ओके अब मैं को तो ये यूज करना ही करना है, सो लेट मी गो हेड एंड अटेंड द वर्कशॉप. अटेंड कर लेते हो आप, सारा सीख लेते हो वॉक्स व्यूवर के बारे में. अब जब पब्लिश करने की बात आती है, जब आप पब्लिशर को भेजते हो, उस समय आपको मालूम पड़ता है दत्त तेरे की मैंने जो जो सीखा, अब पब्लिशर ने तो मना कर दिया हटाओ इसको कलर वाला, हम तो कर ही नहीं सकते. अगर उसी को ब्लैक एंड व्हाइट टर्न करते हो अगर आप, ओके अगर पब्लिशर ने, तो वो सारा का सारा क्या आएगा, काला काला आ जाएगा. अब वो जब पब्लिश करेगा उसकी किताब तो खराब हो गई. You understood now? So that is the reason why you have to be very careful and you should know these are what I call it as in English में हम इनको कहते हैं nuances and intricacies. जिसने किया है उसको पता होता है, नहीं तो मैं भी आपको बोल दूंगी चलो मैं वॉक्स व्यूवर आपको दिखा रही हूँ बड़ी बड़ी बातें. तो अभी क्या हुआ, मोनिका एंड अश्विनी who were supposed to join me up for this particular workshop because they are writing right now, जैसे ही मैंने उनको कहा कि I'll be doing hands on experience, दोनों के दोनों गायब. You understood now? Why? Because एक तो उनके पास ये दोनों ही नहीं थे डेटाबेसेस. मोनिका ने हाँ तो कह दिया लेकिन वो आई नहीं का मतलब क्या हुआ, उनको पता है कि रमनी मैम मुझसे यूज करवा लेंगी स्कोपस और बोलेंगी कि चलो मुझे ओपन करो मैं दिखाती हूँ. आपने बोला ऐसे, आप गायब हुए नहीं हुए. रीजन, you are having the access to both the databases and you are able to work out and understand it. मालूम पड़ा आपको? अब आपको मालूम पड़ा कि मैं वेब ऑफ साइंस में जाऊंगा तो मुझे कौन कौन सी चीजें मैं वहां से ले सकता हूँ. अगर मैंने आज पूछा आपसे कि ओके निकुंज अब मुझे बताओ आपने WOS तो यूज किया है, उसमें से क्या क्या रिट्रीव किया, तो क्या क्या बताओगे आप? मैम वो डाटा बताओगे ना? Yes, मैं merger acquisitions पहले किया, all fields किया, analyze the results में देखा, citations देखे, बस दो ही चीज देखे हैं आपने. yes. और जो analyze results में से भी दो चीजें ही थी, क्या क्या थी उसमें, publications और दूसरा कौन सा था, citations. यानी कि आपका जो different मैं आपको बता रही हूँ types of bibliometrics, WOS फोकस कर रहा है किसके ऊपर, only on पब्लिकेशन मेट्रिक्स के ऊपर और दूसरा जर्नल मेट्रिक्स के ऊपर. जर्नल मेट्रिक्स मालूम पड़ा आपको? अब ये these अगर आप जब तक नहीं करोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा. You understood now why I wanted it to be a hands-on experience. अब आपने गूगल स्कॉलर को देखा, गूगल स्कॉलर ने क्या दिया, उसने तो आपको ऑथर मैट्रिक्स भी दे दिया, पब्लिकेशन मैट्रिक्स भी दे रहा है, then it has gone for general metrics also. MDPI का हमने देखा अभी कि वो 6 के 6 अलग अलग जगहों में वर्जन्स, मतलब अलग अलग जगहों पे पब्लिश किया उसने पेपर को, लेकिन सारे के सारे किसके साथ लिंक्ड है, जर्नल के साथ. कौन सा जर्नल था वो, एनर्जीज, जो पब्लिश किया गया था कहाँ पे, MDPI से. MDPI. You understood now अंदर की कहानी कैसे कैसे जा रही है and why metrics is so important for us. अब आपको मालूम पड़ गया कि पब्लिकेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ऑथर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, जर्नल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है करके, राइट? yes, हमने कल वो भी देखा, H इंडेक्स वो भी देखा था, साइटेशंस का, वो हमने देखा इस वाले पार्ट पे. Yes or no? That also you have checked it. Last one is on altmetrics. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये होता क्या है. ओके
ओके Okay, सो ma'am. लेट अस गो बैक सो दैट ओके मैंने शुरुआत ही ऑल्ट मैट्रिक्स से किया है. चलो अब मैं थोड़ा सा अपनी में आती हूँ. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. थियरी भी कर रहे हो आप मेरे साथ साथ और प्रैक्टिकल भी कर रहे हो. अब ये कह रहा है व्हाट इज ऑल्ट मैट्रिक्स. ऑल्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स. Hmm. दिख रहा है यहाँ पे उसने लिख के Yes, दे ma'am. दिख रहा है. Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. कि ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स है करके बता दिया ये वाला पार्ट. अब वो कह रहा है आर मेजर्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिश्ड रिसर्च बियॉन्ड ट्रेडिशनल साइटेशंस. अब वो क्या Citation. क्या होंगे दैट यू विल बी. पहला वाला जो हम कर रहे थे दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल बिब्लियोमेट्रिक्स. अब मैं आपके ये मोस्ट प्रोबेबली आपका मैं खत्म करूंगी बिब्लियोमेट्रिक्स वर्कशॉप ऑन वेडनेसडे. बेसिक्स ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स. उसके बाद जो मैं दिखाऊंगी आपको दैट वुड बी कमिंग अप एज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द बिब्लियोमेट्रिक्स. उसमें आप देखोगे ट्रेडिशनल बिब्लियोमेट्रिक्स और कंटेम्पररी बिब्लियोमेट्रिक्स जो आजकल हम लोग जो यूज करते हैं. ओके यूजिंग द मशीन लैंग्वेज या आप मान के चलो न्यूरल नेटवर्क्स उसको यूज करके भी हम लोग बिब्लियोमेट्रिक्स करते हैं. उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो कोई नहीं सिखा रहा. वो सारे के सारे बैठे हुए हैं किसके ऊपर? बॉक्स व्यूअर के ऊपर. और वो जब तक आपको पता है कि मेरा सारा काम एक ही मुट्ठी में मतलब एक ही मिनट में खत्म होना है तो व्हाई शुड आई गो एंड यूज इवन बॉक्स व्यूअर. ये तो मेरा टाइम वेस्ट है पूरा का पूरा. यू अंडरस्टूड ना. सो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? फाइंडिंग इट आउट फ्रॉम द स्कॉलरली इंटरेस्ट जो मैं अभी गूगल स्कॉलर दिखा रही हूँ. इसको मैंने कहा था. अब डाटा आपने पूछा कि मैम इसको कैसे करेंगे हम लोग. यस और नो यू आस्क मी दैट Yes, क्वेश्चन. ma'am. मैं बताऊंगी आपको. और ये करते हैं हम लोग रेफरेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम्स होती है ना जैसे मेंडली हो गया आपका. देन व्हाट इज दैट अदर वन मैटलैब हो गया आपका. एंड ड्राइव हो एंड नोट हो गया. वन नोट ड्राइव हो गया. उसमें अगर आप लेके आते हो वहां पे बुक मार्किंग होती है. ये राजा सर का मैंने अटेंड तो नहीं किया ना. मैंने उनके वीडियोस देखे. आई होप सो कि मेंडली में उन्होंने बताया होगा ये सब कुछ. मैं एक बार पूछ लूंगी सर से. पूछ के आपको मैं कल बताती हूँ कि उन्होंने कवर किया है कि नहीं किया. अगर नहीं किया है तो इट्स माय ड्यूटी. वो फिर हम आपको समझाएंगे. और दूसरा Okay, आता ma'am. है मीडिया इंटरेस्ट. ओके. और तीसरा आता है पब्लिक एंगेजमेंट सोशल मीडिया एक्टिविटी. आप देखते हो ना जैसे आपका हो गया और Twitter भी. वगैरह. हाँ जी बिल्कुल. और भी चीजें हैं आपके जहाँ जहाँ आप लोग उसको जैसे रिसर्च गेट हो गया. उसमें भी लोग पब्लिश करते रहते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी ये हो गया है हमारा पेपर बोलकर. सो देर आर फेसबुक में कर दिया. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज सोशल मीडिया एक्टिविटी. तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं एंड देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ही इज टेलिंग यू दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द यूज ऑफ research in policy documents and other गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. ये गूगल ही स्कॉलर आपने अभी देखा है. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड को. हमने अभी देखा गूगल स्कॉलरली में जाके. कहाँ है हमारा गूगल स्कॉलर? ये आ गया. अब वो पूछ रहा है आपको इंक्लूड पेटेंट्स साइटेशंस. अगर मैं चेक कर दूंगी तो पेटेंट्स भी आ जाएंगे साइटेशंस भी आ जाएंगे. और अगर मैंने नहीं चेक किया मतलब उसने वो इंक्लूड नहीं किया अभी तक. यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स आल्सो. और ये Yes, भी ma'am. यहाँ पे अभी ग्रे लिटरेचर नहीं है आपका. कॉन्फ्रेंस पेपर कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स डालता है गूगल और WS तो डालता ही नहीं है. Ma'am, what is grey literature? ग्रे लिटरेचर जैसे आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है. ओके. आपने Oh, अपना पेपर सबमिट कर दिया वहां पे लेकिन उन लोगों ने उस पेपर को पब्लिश नहीं कराया. okay, ma'am. ओके दैट इज कॉल्ड एज. अभी मैं SLR में करवाने वाली हूँ आपको. डोंट वरी यू आर ज्वाइनिंग मी आप. तो 8 o'clock थोड़ा सा वेट कर लो. 8:30 और Yes, 9 ma'am. o'clock तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि ग्रे लिटरेचर होता क्या है और वो कहाँ Okay. कहाँ पर होते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. एंड वी आर ये कौन कोई ज्वाइन करना चाहता है क्या? Yes, ma'am. मोनिका. Monica. मोनिका बहुत जल्दी. ये 1 घंटे के बाद. चलो कोई बात नहीं ज्वाइन करने दो. हाय मोनिका. How are you? You're fine? Are you able to hear me?
Hello, Monica, can you hear me? Okay, that's okay. You can join me up, and I'm just going forward with the rest of my details. You have joined 1 hour late today, Monica, but that's fine. So here, Nikunj, I have told you, even if you want, I'll be showcasing to you what grey literature is, or जैसे unpublished papers हो गए, या the papers which have been rejected. आपने पेपर सबमिट तो कर दिया किसको? You have submitted the paper to the publisher or the editor. उसने मना कर दिया कि नहीं, I'm so sorry, I'm not going to publish your paper. तो वो पेपर आपके पास वापस आ गया, and you are not Yes. ready to submit it, those are also falling under the category of grey literature for us. Okay, so these are the various things that you have to understand basically. And now coming back to the ERIC, ठीक है? अब देखो publication date, can you see on the left hand side here? Yes, ma'am. ये पब्लिकेशन डेट है, जैसे कि गूगल स्कॉलर दिखा रहा था आपको, Yes, ma'am. 2022 सिंस 2021. अब गूगल स्कॉलर को देखो, उसने तो कुछ नहीं दिया ये डिटेल्स, उसने हमें सिर्फ दिखाया सिंस 2022 में. इफ आई क्लिक आई बी गेटिंग इट. अगर मैंने सिंस 2021 पे क्लिक किया, लेट मी क्लिक इट एंड शो इट टू यू. If you click it out here, you will see 2021 में how many papers have been published? 16,000. Ma'am, 16,800. ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे. And since 2018 से अगर मैं देखूँ, it is showing 20,600 papers. Okay. Whereas this is called as comparison of the databases. जो आप एक एक करके करोगे, and you can manually show it in this particular format. कि WS में initially उसने कितने papers दिखाए? 4074 papers. I'm roughly assuming. Google ने how many papers it had showcased? It showcased 90 lakhs. I think it was 70 lakhs, right? 17 lakh 90 था. 17 lakh. 17 lakh and 90,000 papers उसने दिखाया. गूगल स्कॉलरली ने कितने दिखा दिए थे? 6,300 दिखाया अप्रोक्सीमेटली. स्कोपस अभी हमने देखा नहीं है, सो वी विल सी. माइक्रोसॉफ्ट मैंने देखा नहीं. The last one that I was showcasing to you, Eric, showed me how many papers? Only 103. Okay. Can you see the differences? Yes, now ma'am. you tell me which one is the one that you are going to authenticate and say कि yes इसके ऊपर. That is the reason when you are doing the bibliometrics, they say give the name of the databases that you have gone through, और वहाँ पे क्या क्या papers, what is the status you have seen, and that's why when you are writing a paper you will give the heading as WOS, और ये सारा का सारा चिट्टा लिखोगे उसमें. ये कहते हुए that yes, when I use WOS, all fields मैंने किया, I got 4,074, and then I was able to get the analysis results भी आ गए मेरे पास, citation results भी आ गए थे. Only 2 things are available in WOS. Simple. Okay? और यहाँ पे आप लिखोगे what? Analyze results. And what was, I'm sorry about my mistake, spelling mistake. It is results, comma, you will say what? Citation. That's all. Google पे सबसे पहले आपने देखा, it was giving you all of things. What were given to you? It was giving to you time. Then it gave you the information of the title of the paper. Author's name was also given. Then citation. आप ये सारा का सारा लिखोगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो. So it is the title, authors, then this is the name of the journal, year, and who is the publisher. ठीक है? Apart from this, you got the options of saving, cite, cited by. मतलब कितने लोगों ने इस पेपर को cite किया. This result you also got in WOS. Yes, Are you with me?
कल यस हम मैम, यस मैम। WOS को ओपन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। आज आप सिर्फ समझो कि क्या क्या हो रहा था, जैसे कि हमने कल किया था WOS। ओके, क्लियर विद दिस? रिलेटेड आर्टिकल्स मतलब इसके साथ साथ what are the other articles that you can see? For example, this is what? Systematic review of research on sustainability in mergers and acquisitions. So if you click on this, that is on related articles, you would be able to see more. मतलब इसके आ जाएगा सस्टेनेबल अप्रोच, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। अब देख रहे हो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस दिखा दिया, लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस दिखा दिए। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज रिलेटेड आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल्स हैं ऐसे? 101। तो आप अगर इसमें कॉलम बना रहे हो, ओके, एंड हियर इफ यू राइट इट डाउन, रिलेटेड पेपर्स, तो मैम आपको स्कॉलर, हाँ, तो गूगल, अच्छा आई एम सॉरी, इसको मैं अभी निकाल के, लेट्स से दिस इज द हेडिंग। आप यहाँ पे लिखोगे WOS ने बताया आपको हाउ मेनी आर द रिलेटेड? जीरो। नहीं, नाउ यू विल से 0। गूगल ने बताया, जीरो। आपको गूगल स्कॉलर ने बताया हाउ मेनी पेपर्स आर देयर? 103, 1। 103 या जो भी वो वाला पार्ट। नाउ कम टू एरिक। आपने एरिक पे जाओ, दिस इज अनदर डाटाबेस। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिंस 2021 में कितने आ गए पेपर्स आपके पास? 2। And if you are going for 2022, because here they have got the restriction, अभी आप देखोगे कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टर्स आते हैं, उसके हिसाब से 0 इनको पेपर्स मिले। मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट का है ना ये वाला। तो आई टोल्ड यू एरिक इज अ गवर्नमेंट। इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, ये सारा बताएगा आपको कि एरिक है क्या। आई नो इट, सो आई एम टेलिंग यू, इट्स एन अमेरिकन गवर्नमेंट का डाटाबेस सेंटर। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है that I have these as the topics. Descriptor मतलब जो आप यहाँ गूगल स्कॉलर में या स्कोपस में डालते हो, ओके, एंड करके ये ऑलरेडी आपको बता रहा है। हायर एजुकेशन में 31 पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में 27, जो गूगल ने कहा था रिलेटेड पेपर्स, ओके, यहाँ पर उसने किस तरह से दिखा दिया? डिस्क्रिप्टर से। Are you with me? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. WOS ने कैसे दिखाया आपको? ट्री मैप। रिमेम्बर द ट्री मैप में? यस मैम, सब्जेक्ट वाइज। उसने उसमें डिपार्टमेंट्स दिखाए, मतलब डोमेन्स दिखाया एंड नंबर ऑफ पेपर्स। लेकिन इन एरिक व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग द डिस्क्रिप्टर्स। डिस्क्रिप्टर्स मतलब टाइटल्स बता दे रहा है आपको कहाँ पे कितने कितने पेपर्स। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो ये और दिखा देगा। नाउ यू विल सी, यू विल हैव अ फन टाइम। अच्छा मैम, इतने सारे कौन कौन से? हायर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, फॉरेन कंट्रीज, मर्जर्स, पब्लिकेशन, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कॉलेज फैकल्टी, केस स्टडीज, कलेक्ट। ये सारे के सारे उसके टॉपिक्स हो गए। मालूम पड़ा आपको? Yes ma'am. Okay, so tomorrow when you are doing the advanced search आप करोगे, you can use these topics also side by side. Okay, because Okay, are you with me here? तो ये Yes ma'am. Okay, एरिक के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये वाली चीजें। एंड देन यू कैन सी सोर्स। सोर्सेस मतलब कौन कौन से जर्नल्स में से। तो आप देखोगे कि इसने रिकॉग्नाइज कर लिए इतने जर्नल्स, बस। कौन कौन से? प्रोग्रेस लर्निंग और लाइब्रेरी जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल जो भी है, जर्नल ऑफ यूरोपियन, वो वाला निकाल रहा है। इसके साथ साथ नीचे उसने ऑथर के नाम भी दे दिए। मतलब ये आपका काम पहले ही कर दे रहा है। ये देखो, सारे के साथ ऑथर्स के नाम भी दे दिए कि भाई मर्जर एक्विजिशंस में ये ऑथर्स ने काम किया है इन दीज 103 पेपर्स। ओके, एंड देन यू हैव गॉट लास्ट में देखिए, they have given you what? Publication type, मतलब जर्नल आर्टिकल्स कितने हैं। ओके, अब ये आपको नहीं मिला कहाँ पे? WS में भी नहीं मिला, ना ही गूगल में भी नहीं मिला था। इसमें मिल गया आपको सारा। ओके, देन एजुकेशनल लेवल which is missing in
Google as well as WOSP. Yes, ma'am. So now you will have to start thinking, ऐसा क्या है कि WOS इन सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहा है, वो उन चीजों पे ही फोकस कर रहा है जो बहुत ही कॉमन हो गया है. Okay, and that is the reason when I am taking a session on bibliometrics, I prefer to showcase these databases also to you people. मालूम पड़ा आपको? Yes, And when अभी जैसे आपने एडमिशन ही लिया, as you said, now you can go ahead and do 103 papers में से आप काफी काम कर सकते हो आप. Okay, और इतना सारा उसने आपको डिटेल्स दे दिए हैं. So you have a lot of things that you can do through these 103 papers only. आप इसको एक्सपोर्ट भी कर लो, काफी है. It will give you all those things. और अगर डाउनलोड करना है तो आपको पता है peer reviewed है या आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा है. डायरेक्ट लिंक you can do R&D. I have given to you this one, Eric करके Eric database. It will come out in Google and you can do a lot of R&D for yourself. Are you with me till here? Yes, ma'am. Okay. इसके अलावा Eric में when I was trying to showcase, I told you go for the advanced search tips. अब मान के चलो you are not interested only in merger and acquisitions. आप क्लिक करिए इसके ऊपर. ओके, अब जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, अब देखो क्या बोल रहा है. अब वो आपको सिखा रहा है. Eric will look for your search items across a set of key fields. कैसे? Title, author, source, abstract, descriptor. ये सब आपको मालूम पड़ गया. उसने पहले ही दे दिया था आपको ये Yes, सारा. ma'am. वो उससे आपको सर्च करके देगा. If you want, you can see the video. वो सर्चिंग कैसे कर रहा है. नहीं चाहते हो, go ahead. How do I create more specific searches? अब वो आपको बता रहा है कि कैसे कैसे सर्च करना है. इस तरह से सर्च करो. नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. ये एग्जांपल दे रहा है, नॉट फॉर द एक्विजिशन एंड मर्जर्स के लिए नहीं, जनरल में आपको ये दिखा रहा है. यू विथ मी? और फील्ड में जाओगे तो कैसे आएगा? ऑथर यंग चाहिए, ऑथर इस तरह का चाहिए, ये सारा का सारा होता है इसके अंदर. लेकिन मैंने अभी खत्म नहीं किया है, सो आई एम नॉट एंटरिंग इनटू दीस थिंग्स राइट नाउ. These are the मैम अगर स्पेसिफिकली किसी इंडस्ट्री में किसी एक इंडस्ट्री या सेक्टर का देखना तो कैसे देखेंगे? merger acquisitions में. Yes, ma'am. Okay, you can write here. Give me the industry. Anyone, ma'am. Telecom industry. Okay, so write it down. Telecom. पहले तो directly करो without any usage of the abbreviations or anything. अगर इनके पास है papers, how many papers? अच्छा ये अब आपका ये search दिखाना है यहाँ पर, तो इस पे मत करो. So what you can do? And wait and see. अब वो कह रहा है कि no, there are no results. यानी कि मेरे को ऐसे नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा. वो कह रहा है वहां पर सर्च टिप भी दे रहा है. धीरे धीरे से चलो. और जर्नल टिप्स आपने देखा अभी पीछे? You haven't seen. Let me show you. ये देख रहे हो आप? Try more general or fewer search terms. अब merger acquisitions को हम लोग ये भी बोलते हैं. I hope you know. ये तो नहीं बताना आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. M&A. अब ये कितना आ रहा है? कितने रिजल्ट्स आए? मैम 6. आउट ऑफ? मैम टोटल 6 आ रहे हैं. पहले कितना दिखा रहा था वो? 106. अब मालूम पड़ गया आपको कि मैंने इसको थोड़ा सा मैंने ये घुमा दिया तो और भी रिफाइन होके आ गया आपके पास. Are you able to understand? अब इसमें से देख लो. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर टेलीकम्युनिकेशंस फॉर फ्यूचर्स ऑफ द सोसाइटी 3. मतलब ये टॉपिक्स पे लोगों ने MA एंड MA मतलब M&A एंड टेलीकॉम पे ये वाली चीजों पे काम किया है इन लोगों का. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये वाला टॉपिक्स ही है. दैट मीन्स आई कैन गो हेड एंड डू मोर रिसर्च ऑन समथिंग एल्स. जैसे मोर पे भी क्लिक करो
ये तो कम से कम दे तो रहा है आपको टॉपिक्स कि भाई इतना. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई एरिक is turning out to be more careful and it's giving you the list. अब आप ये लिस्ट देखो और अपने आप से सोचो, are these things the only things that I have to focus, या कुछ और भी है जिस पे मैं फोकस कर सकता हूँ? You understood? Be a critical person for yourself. क्योंकि अभी आप beginning में हो and you are doing the bibliometric, and bibliometrics is going to help you out using ERIC in this manner. अब यही चीज ये है मेरे पास. I'm copying it. I'm going to Google. मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए. अब मैं इधर को आ गई, ठीक है? And now I'm saying, giving it the same thing, and I'm asking it, come on, give me. कितना कर दिया उसने कम? 396 out of, and in how many seconds? 0.06 seconds. Yes, ma'am. ठीक है. So don't you think that this is much more authentic for you? अगर इसको और रिफाइन करना चाहते हो, टेलीकॉम में कौन सी चीज पे आप फोकस करना चाहते हो, that also you can find out and you can carry forward. Okay, new handsets पे फोकस करना चाहते हो, customer financial performance. Okay, financial performance. Shareholders return, ma'am. Shareholders return. Okay. देखो वो कुछ बता रहा है. तो आप कितना दिया पेपर्स उसने? 315. मालूम पड़ा अब आपको? तो अब आप ये 315 and these are all from since 2022. ये relevant वाले हैं अभी जो आपके पास आ रहे हैं. Now you can download these papers and you can do a lot of authentic kind of a work for yourself. जिसको हम स्टडी कहते हैं, एक चीज को लेकर आप कर सकते हैं. यू अंडरस्टूड ना? अब ये चीज मैंने 2 में दिखाया, स्कोपस एंड योर WOSB रहता है. ओके, अब उस पे भी ये डाल के देखें and then we will have to find out what else it is coming out to be for us. Are you able to understand? Therefore they say bibliometrics also helps you out to find out the missing links and the gaps also for you. क्योंकि इसमें से गैप्स भी तो निकलेंगे, सारे लेटेस्ट पेपर्स हैं आपके पास. And I don't know whether you are aware of it or not, how to find out the gaps and the missing links. वो भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता. तो वो निकालना आपको एक पेपर, एब्स्ट्रैक्ट, लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप, बस उसमें से निकालिए और देखिए कि क्या क्या दे रहा है वो आपको. ओके मैम. वहीं पर भी आपके वेरिएबल्स सब कुछ आ जाता है. ओके, आर यू विथ मी टिल हियर? Yes, ma'am. Okay, now I want you to, I'm stopping it, I'm not going ahead right now. I want you to open up Scopus. अगर आपको मालूम है कैसे सर्च करना है, नहीं है, wait till tomorrow, we will do tomorrow. Microsoft और Scopus को पकड़ेंगे. आज जैसे मैंने Google Scholar और ERIC को पकड़ के आपको दिखाया. Yesterday we did on WOS. Tomorrow we will focus on Scopus and Microsoft. अब आप देखो, I did not go into the advanced. मैं सिर्फ बेसिक्स पे हूँ अभी तक ना. इसी में हम लोग देख रहे हैं कि कितना सारा चीजें we have got and you are able to go ahead and do the research only on these things which I'm asking you to do it basically. Yes or no, Nikul? So you have to carry forward and lay your hands. अभी जैसे आपने shareholders return बोला, M&A में देखो कुछ और टॉपिक आता है, that you introduce it and you have got, let's say for example यहाँ पर and लिखा, मैंने instead of and use the word or and try and find out कि पेपर्स कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है. यहाँ पर देखो, एरिक में देखो मैम, वो and और वो कैपिटल में आएगा. हाँ, वो हम देखेंगे. I'm just making it up right now. Some of them can be done very easily also. And we are able to find out. उसने तो सिर्फ एक ही दे दिया आपको यहाँ पे. And that also for the year 2021 के लिए in ERIC. तो उस तरह से ही देखिए इसमें कितना आ रहा है और फिर फाइंड आउट करो कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है. जैसे you are aware of it कि इसमें मेरे को लगा लेना है quotes. You can put them in quotes also and then carry forward and see what you are going to get. 158.
मतलब 50% उसने आपका निकाल दिया पूरा का पूरा. You understood now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So these are the things that we have to do it. And SLR join करोगे तो और भी fun आएगा, because after 2 days or maybe third day, I'll be showcasing to you abracadabra or magic, and then you will say, "Oh, mom, this is so easy to do it." Basically, then you know you don't require all these things also side by side. लेकिन ये सारा चीजें भी आपको मालूम होना चाहिए. Tomorrow, if you are not able to do by that method, then this is there for you, and you can carry forward also. Okay, right? Yes, ma'am. Now, go ahead, take your dinner, and join me up sharp at 8 o'clock for SLR wala part. And I would be also joining you up in that manner. Monica, tomorrow again we are going to meet at what time?